آمین. خداوند یسوع مسیح کے عزیز اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام. یسایہ چیپٹر 9 ورس 1 to 7. لیکن اندوگین کی تیرگی جاتی رہے گی. اس نے قدیم زمانے میں زبلون اور نفتالی کے علاقوں کو ذلیل کیا، پر آخری زمانے میں قوموں کے گلیل میں دریا کی سمس یردن کے پار بزرگی دے گا. جو لوگ تاریکی میں چلتے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، جو موت کے سائے کے ملک میں رہتے تھے ان پر نور چمکا. تو نے قوم کو بڑھایا، تو نے ان کی شادمانی کو زیادہ کیا. وہ تیرے حضور ایسے خوش ہیں جیسے فصل کاٹتے وقت اور غنیمت کی تقسیم کے وقت لوگ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ تو نے ان کے بوجھ کے جوئے اور ان کے کندھے کے لٹھ اور ان پر ظلم کرنے والے کے عصا کو ایسا توڑا ہے جیسے مدیان کے دن میں کیا تھا. کیونکہ جنگ میں مسلح مردوں کے تمام سلاح اور خون آلودہ کپڑے جلانے کے لیے آگ کا ایندھن ہوں گے. اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا. اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کو کچھ انتہا نہ ہوگی. وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملوکت پر آج سے ابد تک حکمران رہے گا، اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا. رب الفاظ کی گئی ہوئی یہ کہے گی. آمین. آمین. خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. آمین. خداوند کا شکر ہو. ابھی جو حوالہ پڑھا اس کے مطابق جو آج کلام مقدس میں سے بات میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ ایک لڑکا تولد ہوا، یعنی ایک لڑکا پیدا ہوا. ٹھیک ہے، آج اس کے بارے میں ہم کلام مقدس میں سے سیکھیں گے. لیکن اس سے پہلے کہ میں اس بات کے بارے میں بیان کروں کہ یہ کون سا لڑکا ہے، کہاں کا ہے، کیا اس کی نوعیت ہے، کیوں یہ عام لڑکوں سے ڈیفرنٹ ہے، ٹھیک ہے، ایک سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک دفعہ ایک بزرگ عورت نے خدا کو خط لکھا اور کہا کہ خداوند تو جانتا ہے کہ میں کتنے سالوں سے بیوہ ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور ہر سال میرا یہ کرسمس آتا ہے اور گزر جاتا ہے، اور میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے کہ میں اپنے لیے کچھ کھانے کا انتظام کر سکوں، اور اس سال تو حالات پہلے سے بھی بہت زیادہ برے ہیں. میں نے ابھی تک اپنا بجلی کا بل بھی نہیں دیا، پانی کا بل بھی نہیں دیا، گیس کا بل بھی نہیں دیا، اور جتنے بھی بلز ہیں وہ سب پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں، اور میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ میں ان سب بلز کو ادا کر سکوں. خداوند اس سال تو میرے لیے کچھ کر. اس نے یہ خط لکھا اور خدا کو پوسٹ کر دیا. جب اس نے پوسٹ کیا تو اس کے اوپر لکھا تھا ٹو گاڈ. جب پوسٹ آفس والوں نے دیکھا تو اس نے کہا ہم اس کو کہاں ڈیلیور کریں، خدا کہاں مل سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا خدا تو ہمارے درمیان میں ہی ہے، لیٹس اوپن اٹ اینڈ سی کہ کیا خدا کو کسی نے خط لکھا ہے، اس کو پڑھ کر دیکھیں. انہوں نے خط کھولا تو اس میں اس بیوہ عورت کا جو ہے وہ نام اور اس کا ایڈریس لکھا ہوا تھا، اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ خداوند تو سب کچھ جانتا ہے کہ میں کس مشکل حالات میں سے گزر رہی ہوں. میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ میں اپنے سارے بل ادا کر سکوں، اور میرے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، اور مجھے نہیں پتا کہ اس کرسمس کو میں کیسے سروائیو کروں گی. جب پوسٹ آفس والوں نے اس خط کو پڑھا تو وہ بڑے پریشان ہوئے، اور انہوں نے کہا آپس میں مشورہ کیا کہ ضرور اس عورت کے لیے کچھ کرنا چاہیے، ضرور اس عورت کے لیے کچھ کرنا چاہیے تاکہ یہ عورت جو ہے کم از کم اس کرسمس کو پچھلے کرسمس کی نسبت ایک بہتر کرسمس کے طور پر سیلیبریٹ کر سکے. تو جو پوسٹ آفس والے تھے ان سب نے مشورہ کیا کہ لیٹس کنٹریبیوٹ سم تھنگ. سب تھوڑا تھوڑا پیسہ اکٹھا کرتے ہیں اور اس عورت کو بھیجتے ہیں تاکہ اس عورت کی مدد ہو سکے. جتنے بھی تھے ان سب نے پیسے اکٹھے کیے، اور جب انہوں نے پیسے اکٹھے کیے تو وہ جو اماؤنٹ اس عورت کو چاہیے تھی اس میں سے 50 پاؤنڈ کم تھے، اس میں سے 50 پاؤنڈ کم تھے. تو انہوں نے کہا
कोई बात नहीं, चलो खैर है, कुछ ना कुछ तो उसकी हेल्प होगी ही ना। तो यही जो है, यही उसको भेज देते हैं। उन्होंने वो सारे पैसे इकट्ठे किए और इसके साथ एक नोट लिखा उस औरत के नाम पे और उसको इरसाल किया। जब वो औरत ने पढ़ा तो वो बड़ी खुश हुई। उस नोट के ऊपर और उन पैसों के साथ लिखा हुआ था कि मैंने तेरी हालत जार पे नजर की है और मुझे पता चला है कि वाकई तेरा हर क्रिसमस जो है वो बड़ा मुश्किल गुजरता है। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि तेरा ये क्रिसमस जो है वो पहले क्रिसमस की तरह स्ट्रगल में गुजरे, इसलिए मैं ये पैसे जो हैं वो तुझे भेज रहा हूं। वो बड़ी खुश हुई, उसने उस पैसों को हासिल किया और बड़ी खुश हुई कि वाह, खुदा ने मेरी सवाल का जवाब दे दिया है, खुदा ने मेरी मदद भेज दी है। उसने दोबारा एक खत खुदा को लिखा थैंक यू नोट के साथ और उसको अरसाल कर दिया। और जब वो लेटर पोस्ट ऑफिस में दोबारा आया तो उन्हीं लोगों ने उसको देखा और उन्होंने कहा कि उस औरत का जवाब आया है, तो लेट्स ओपन इट एंड सी कि वो क्या कहती है। तो उस नोट को पढ़कर वो जितने भी पोस्ट ऑफिस वाले थे वो बहुत डिस्करेज हुए। पता क्यों? क्योंकि उसने लिखा था कि थैंक यू गॉड, जो तूने पैसे मुझे भेजे थे वो मुझे मिल गए हैं और मैं इनको हासिल करके बहुत खुश हूं। लेकिन एक मसला है जो मैं आपको बताना चाहती हूं कि जो पोस्ट ऑफिस है वहां पर देयर इज वन थीफ फेलो एज वेल। कि जो पोस्ट ऑफिस में है, जो काम करने वाले हैं, उनमें कोई चोर भी है जिसने 50 पाउंड उसमें से निकाल लिए। बहुत दफा मेरे अजीजों हम ऐसे ही अपनी मसीही जिंदगी गुजारते हैं। हम अपने मोहसिन को, हम अपने हेल्प करने वालों को, जो हमारे साथ खड़े होते हैं, जो हमारे साथ मददगार होते हैं, हम बहुत दफा उनको न जानते हुए मिसअंडरस्टैंड करते हैं, जिसकी वजह से हम दूसरों के लिए हंसी का बायस बनते हैं। आप सब हंसे हैं? कितने लोग हंसे हैं? बस 2-4 ही हंसे। मैं भी हंसा हूं, हंसने वाली बात है। तो मेरे अजीजों, जब हम बेवकूफी के काम करते हैं तो फिर हम दूसरों के लिए हंसी और मजाक का बायस बनते हैं। और यहां पर भी कलाम मुकद्दस में से अभी जो हवाला आप सबके सामने पढ़ा गया है, यह हवाला जो है वो दूसरों के लिए हंसी और मजाक का बायस बना रहा है बहुत सेंचुरीज तक। क्योंकि इस हवाले को समझना जो है वो बड़ा मुश्किल था, जिसमें लिखा है कि हमारे लिए एक लड़का तवल्लद होगा, एक लड़का पैदा होगा और वो जो है वो अजीब मुशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। लोग कहते थे कैसे अमन आएगा, कैसे शांति आएगी? जब तक कि खुदा ही ना आए उस वक्त तक तो नहीं हो सकता। और ये पैगाम जो है वो बहुत ज्यादा लोगों के लिए हंसी का बाइस था। लेकिन मेरे अजीजों, आज ये पैगाम जो है वो हमारे लिए हंसी और मजाक नहीं रहा, बल्कि हमारे लिए एक हकीकत का रूप बन गया है। हकीकत का रूप बन गया है। और हकीकत यह है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो ही अजली और अब्दी सलामती का शहजादा है। कैन यू से आमीन? आमीन। आज थोड़ी देर के लिए मैं इस लड़के के बारे में बात करना चाहता हूं जिसके बारे में लिखा है कि वो तवल्लद हुआ। तवल्लद होने का मतलब है पैदा होना, जन्म लेना। और बहुत सारे लोगों का यह अकीदा है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो हकीकी इंसान नहीं है, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ खुदा है और वो रूह है। और निकलाउस का जो अकीदा है, आप इसको इमाल की किताब में भी पढ़कर देख सकते हैं और मुकाशफा की किताब में भी पढ़कर देख सकते हैं। जो निकलाउस का अकीदा था, निकलाउस के जो फॉलोअर थे, जो मानने वाले थे, वो यही कहते थे कि यीशु जो है ही इज जस्ट अ स्पिरिट, ही हैड नो बॉडी। लेकिन कलाम मुकद्दस का यह हिस्सा जो है वो हमें बयान करता है और हमें बताता है कि नहीं, यीशु तवल्लद हुआ था, पैदा हुआ था। और पिछले साल शायद आपको याद हो तो मैंने कलाम मुकद्दस में से शेयर किया था कि क्रिसमस आ गया है। किसी को याद है? क्रिसमस आ गया है? किसी को याद है सिवाय 2 लोगों के? अगर आ गया है तो फिर वो कहां है? ठीक है, अगला सवाल मेरा ये था कि अगर वो आ गया है तो फिर कहां है? क्रिसमस कहां है? किसी को मालूम है कहां है? वेयर इज क्रिसमस? 25 दिसंबर को। तो फिर किधर है? ही इज इन आवर हार्ट्स। क्रिसमस जब तक हमारे दिलों में नहीं होता उस वक्त तक क्रिसमस कभी भी नहीं बनता।
तो याद रखे मेरे अजीजों, जैसे खुदावंद यीशु मसीह बनाए आलम के वक्त से ज़बा किया गया, वैसे ही वो दुनिया बनाने की तख्लीक से पहले से उसको मखसूस कर दिया गया, उसको वक्त कर दिया गया कि वो इस दुनिया में आएगा। उसके जन्म का एक दिन ठहरा दिया गया, मुकर्रर कर दिया गया, और फिर खुदावंद यीशु मसीह अपने मुकर्रर वक्त पर इस दुनिया में पैदा हुआ। और किसी को मालूम है कब पैदा हुआ? हाँ जी, कोई फिक्स नहीं है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब वक्त पूरा हो गया तो मसीह औरत से पैदा हुआ। जब वक्त पूरा हो गया, तो याद रखें मेरे अजीजों, जब वक्त पूरा हो गया तो इट मींस कि वो वक्त पूरा होने का कोई शख्स इंतजार कर रहा था, किसी के दिल में उसका इंतजार था, वो तड़प रहा था कि वो वक्त कब पूरा हो और मैं उस शख्स को इस दुनिया में दुनिया के निजात दहिंदा और रिहाई देने वाले के तौर पर भेजूं। और वो जो शख्स है वो खुदा था। खुदा क्रिसमस के इंतजार में था कि कब खुदावंद यीशु मसीह क्रिसमस के मौका पर दुनिया में आए और खुदा और इंसान का जो रिश्ता टूट चुका है उसको दोबारा से बहाल कर दे, और वो जो दूरियां हैं वो खत्म हो जाए, और फिर खुदा और इंसान जैसे बागे अदन में एक थे वैसे ही फिर दोबारा से वो एक हो जाए। तो इसलिए मेरे अजीजों, ये लड़का जो है वो तवल्लद हुआ। लड़का तवल्लद हुआ किसके लिए? फरिश्तों के लिए, हमारे पड़ोसियों के लिए, पड़ोसियों के लिए, गैर कौमों के लिए, उनके लिए, बनी इस्राइल के लिए, किसके लिए? सारे कौमों, सब खलक के लिए, सारी दुनिया के लिए ये एक लड़का जो है वो तवल्लद हुआ। तो किसी को मालूम है क्या फर्क है इस लड़के में और हम में? हम भी तो पैदा हुए हैं, वो निजात दहिंदा था, और उसमें क्या फर्क है? शांति का, हाँ जी, सलामती का शहजादा, कुंवारी मरियम से वो पैदा हुआ। उसमें और हम में फर्क यह है कि वो एक कुंवारी मरियम से, कुंवारी औरत से पैदा हुआ, और ये वो प्रोफेसी है जो पूरी हुई, जिसको खुदा ने बागे अदन में से जब खुदा ने आदम और हवा को निकाला तो इस पेशन गोई के साथ उनको रुखसत किया था कि औरत की नस्ल से एक शख्स आएगा जो अबलीस के सर को कुचलेगा। अबलीस जो है उसका सर कुचला गया। किसी को मालूम है कब कुचला गया था? कलवरी की क्रूस पे। कलवरी की सलीब के ऊपर, जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तमाम हुआ। और किसी को मालूम है कि हम कहते हैं कि यीशु किसकी नस्ल से आया? दाऊद की नस्ल से। आर यू श्योर? नस्ल से जब कहते हैं तो उसका क्या मुराद होती है? हाँ जी, औरत की नस्ल से भी, ठीक है, पैदाइश की किताब में लिखा है, ठीक है। लेकिन जब हम कहते हैं कि दाऊद की नस्ल से है, तो दाऊद की नस्ल से आप क्या मुराद लेते हैं? उसका खानदान, नॉट हिज सीड। याद रखें, यीशु मसीह वॉज नॉट बोर्न फ्रॉम द सीड ऑफ डेविड। किसी को मालूम है किसके सीड से पैदा हुआ? खुदा के तुख्म से वो पैदा हुआ। और अब क्यों यीशु जो है वो दाऊद की नस्ल से पैदा नहीं हुआ, सीड से पैदा नहीं हुआ? किसको मालूम है? ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, दो पिछले साल भी बताया था, उससे पिछले साल भी बताया था। फिर तो आम आंसर। हाँ जी, ओके। इसलिए वो दाऊद की नस्ल से पैदा नहीं हुआ था, क्योंकि दाऊद की नस्ल को जो है वो कर्स किया गया था, लानत किया गया था दाऊद की नस्ल के ऊपर। ठीक है, आइए इसको देख सकते हैं मेरे साथ कलाम मुकद्दस में से जरमाया नबी का सहीफा, उसका 22वां बाब और 28वीं आयत से लेकर 30वीं आयत तक। जरमाया चैप्टर 22 वर्स 28 to 30। यीशु मसीह जो है वो दाऊद के सीड से पैदा नहीं हुआ, वो उसकी ब्लड लाइन में पैदा हुआ है, सिर्फ ब्लड लाइन, क्योंकि नस्ल जो है वो औरत के नाम से नहीं चलती, मर्द के नाम से चलती है। और यीशु जो है वो दाऊद का सीड नहीं बल्कि खुदा के मुंह का कलाम है। ही इज द वर्ड ऑफ गॉड, ही इज द वर्ड ऑफ गॉड। जी, अगर किसी को मिले तो वो पढ़ सकता है। या जरमाया चैप्टर 22 वर्स 28 एंड 28 to 30। क्या ये शख्स कूनिया नाचीज टूटा बर्तन है या ऐसा बर्तन जिसे कोई नहीं पूछता? वो उसकी औलाद क्यों निकाल दिए गए और ऐसे मुल्क में जलावतन किए गए जिसे वो नहीं जानते? ए ज़मीन ज़मीन ज़मीन, खुदावंद का कलाम सुन,
खुदावन यूं फरमाता है कि इस आदमी को बेऔलाद लिखो और जो अपने दिनों में एक बालमंदी का मुंह ना देखेगा, क्योंकि उसकी औलाद में से कभी कोई ऐसा एक बालमंद ना होगा कि दाऊद के तख्त पर बैठे और यहूदा पर सल्तनत करे। खुदावन के आमीन। कलाम पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। आमीन। याद रखें, यकुनिया जो है वो, आप इसको यीशु मसीह के जीनियोलॉजी में भी, मत्ती के इंजील में भी इसको पढ़कर देख सकते हैं। इसको जो है यकुनिया जो है, इसको कर्स किया गया था कि इसकी औलाद में से कोई जो है वो बादशाह ना हो, दाऊद के तख्त के ऊपर बैठने के काबिल ना बने। तो इसलिए अगर खुदावन यीशु मसीह दाऊद के सीड से पैदा होता तो ऑटोमेटिकली वो अंडर कर्स पैदा होता, वो अंडर कर्स पैदा होता। तो वो दाऊद का सीड नहीं है, लेकिन दाऊद का खून जरूर है। बात की समझ आई या नहीं? नहीं आई? नहीं आई ना? नहीं आई भाई, विजय को नहीं आई है। देखिए, सीड में और खून में फर्क है, ठीक है? खून जो है वो जान है, जो कि सीड जो है वो जान नहीं है, वो लाइफ है इटसेल्फ, ठीक है? तो खून जो है वो हमारा ट्रांसमिटेड डिजीज को ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। इस बात को समझते हैं जो मेडिकल के लोग हैं? हेलो, जो मेडिकल के लोग हैं, प्लीज हेल्प मी थोड़ा, ठीक है? अगर आपकी जनरेशन लाइन में डायबिटीज है तो वो आपकी जनरेशन में ट्रांसफर हो सकती है या नहीं? अगर आपकी जनरेशन लाइन में वो है हार्ट अटैक की बीमारी है तो वो ट्रांसफर होगी या नहीं? बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो ट्रांसफर होती हैं। कोई कुछ चंद एक के नाम बता सकते हैं आप मुझे? एड्स और सर आपने क्या कहा? कैंसर। कैंसर ट्रांसमिटेड नहीं है, क्या है? अगर फैमिली लाइन में हो तो होता है। ओके ओके। और ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हाई, हाँ जी, हाँ, ये सबसे बड़ी बात है खासतौर पे आदमियों के लिए। हाँ जी, गंजापन जो है, हाँ जी। और ये पता है कि किस तरह से ट्रांसफर होती है? थ्रू ब्लड लाइन। अगर आपकी जिंदगी में, आपकी जनरेशन लाइन में अगर बुरी चीजें ट्रांसफर होती हैं तो क्या अच्छी नहीं होती होंगी? कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा जो है बाप दादा के गुनाहों की सजा जो है 7वीं पुश्त तक देता है। 7th जनरेशन तक, 7 जनरेशन तक वो ट्रांसफर होती रहती है। लेकिन बरकत कब तक होती है ट्रांसफर? हाँ जी, 1000 नस्ल। नहीं, 100 नस्ल तक। 100 है या 1000 है? इसको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन ये 1000 नस्ल है। ओके, लेट्स सी इट अगेन। आप इसको देख सकते हैं ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 7 वर्स 9 में लिखा, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। लिखा, सो जान ले कि खुदावन तेरा खुदा वही खुदा है, वो वफादार खुदा है, और जो उससे मोहब्बत रखते और उसके हुक्मों को मानते हैं उनके साथ 1000 पुश्त तक वो अपने अहद को कायम रखता है और उन पर रहम करता है। याद रखें, खुदावन का कहर जो है वो सिर्फ 7 जनरेशन तक है, लेकिन खुदा का रहम, खुदा का तरस और खुदा का फजल जो है वो 1000 जनरेशन तक है। इसलिए तो हम कहते हैं कि खुदा जो है वो नहायत रहीम और करीम खुदा है। जो सवाल ये था कि यीशु मसीह जो है, ही इज नॉट द सीड ऑफ डेविड, ही इज द सीड ऑफ गॉड, क्योंकि वो खुदा से पैदा हुआ है और बगैर बाप के पैदा हुआ है। और दूसरा नाम जो उसका है, इसलिए वो दूसरों से मुख्तलिफ है क्योंकि उस पहली बात कि वो बगैर बाप के पैदा हुआ है, और दूसरा है कि उसका नाम अजीब मुशीर होगा। लोग यीशु को उन नामों से जानते हैं जो कि उसकी खुदावंदियत को जाहिर करते हैं, उसकी अलूहियत को जाहिर करते हैं, उसकी कहानत को जाहिर करते हैं। इसलिए उसके सामने वो झुकते हैं और इसलिए वो कहते हैं कि वो अजीब और मुशीर खुदाए कादर है। तो कभी सोचा है कि वो अजीब क्यों है? वाई ही हैड दिस नेम स्ट्रेंज? ये तो अभी हमने डिस्कस कर लिया। एक और बात, और थोड़ा आगे बढ़े। सॉरी, नो मैन, ही वॉज बोर्न विदाउट अ मैन। ओके, और अजीब है इसमें कुछ चीज,
میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ آج ہم دیکھیں کہ یہ لڑکا کیوں دوسرے لڑکوں سے مختلف ہے, کیوں فرق ہے اس میں, کیا چیزیں فرق ہے اس میں جو دنیا کے عام لوگوں میں نہیں ہے. اس کے بارے میں ہزاروں سال پہلے ون بائی ہاں جی. اس کے بارے میں ہزاروں سال پہلے سوچا جب اچھا پیشنٹ کو یہ ہزاروں سال پہلے کی گئی, وہ بے عیب برا ہے. ابھی اس کے بارے میں آگے چل کر بات کریں گے. آپ کیا کہتے ہیں؟ اوکے, یہ کوئی بہت بڑی تو بات نہیں ہے. تارے جب بھی کبھی بھی مجوسی جو ہوتا ہے وہ جب بھی دیکھتے تھے تو وہ کوئی نہ کوئی, جب نیا انسان پیدا ہوتا تو وہ کہتے تھے کہ یہ اسٹارز کا جو نالج ہے وہ آج بھی کام کرتے ہیں, جس کو کیا کہتے ہیں, ایسٹرونالوجی. ہاں جی, جس کی وجہ سے دس از ناٹ اے اسٹرینج تھنگ. اسٹرینج تھنگ اس لیے ہے کہ وہ استقبال میں پیدا ہوا. بہت سارے بچے آج بھی پیدا ہوتے ہیں بھائی جی. آگے چل کے اس کے بارے میں, جنم اور موت کے بارے میں بات کریں گے. اوکے, جو دونوں میں اس بچے میں جو سب سے زیادہ یونیک چیز ہے وہ ہے کہ وہ خدا اور انسان دونوں ایک ایٹ اے ٹائم ہوگا. He is God. He is a perfect man and perfect God. کسی کو معلوم ہے انسان کیسے ہے؟ وہ روتا تھا, بھوک لگتی تھی اس کو, وہ سوتا تھا. ہاں جی, شادیاں اٹینڈ کرتا تھا. شادیاں اٹینڈ کرنا ایک ویسے بڑا ماہر والا کام ہے, ہر انسان کرتے ہیں شادیاں اٹینڈ تو. ہاں جی, ہاں جی. وہ کہ انسان ہوتے ہوئے وہ روتا تھا, وہ سوتا تھا, اس کو بھوک لگتی تھی, ٹھیک ہے, اس کے ایموشنز اور فیلنگز تھے, ٹھیک ہے. تو خدا ہوتے ہوئے کیسے ہم جانتے ہیں کہ وہ خدا تھا کلام مقدس میں سے؟ آلریڈی یہ کلام سنا چکا ہوں. ہاؤ وی نو دیٹ ہی از گاڈ؟ وہ ہیلر تھا, بدروہوں کے اوپر اس کا اختیار تھا, ناپاک بدروہوں کے اوپر. وہ کام کرتا تھا جو خدا ہی کر سکتا, پانی پہ چلنا. وہی he had a power over nature, کہ وہ نیچر کے اوپر اس کا اختیار تھا. طوفانوں کو اس نے تھما دیا, پانی کے اوپر چلا. اور کیا اختیار تھا اس کے پاس جو صرف خدا ہی اختیار استعمال کر سکتا ہے؟ ویسے ایک اور بتاؤں, آج کل جادوگر بھی پانی کے اوپر چلتے ہیں. تھوڑے دن اپنے سال 2 سال پہلے ٹیم ریور کے اوپر ایک آدمی نے چل کے دکھایا, ٹھیک ہے. اور یونیک کیا ہے؟ گناہ معاف کرنے کا اختیار. یاد رکھیں صرف اور صرف خداوند ہی ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہے. اور زندہ کرنا, مردوں کو زندہ کرنا, یہ کام صرف اور صرف خدا ہی کر سکتا ہے. اور یسوع مسیح نے اس گاڈلی ایٹریبیوٹس کو ڈیمونسٹریٹ کر کے ہمیں دکھایا, اس لیے ہم جانتے ہیں کہ وہ خدا ہے. اور کون سی باتیں ہیں جو اس کو خدا بناتی ہیں؟ اس کے پاس زندگی اور موت کا اختیار تھا. اس نے کہا کہ میری زندگی, موت جو ہے مجھے کوئی نہیں مارتا, میں اپنی جان کو دیتا ہوں اور پھر اسے واپس بھی لیتا ہوں, کیونکہ اس نے کہا کہ مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے پھر لینے کا بھی اختیار ہے. اور کیا اس سے بات جس کے پاس جو اس کو خدا ظاہر کرتی ہے باتیں؟ بہت ایک لمبی لسٹ ہے جی آنٹی جی. ہاں جی, یسوع کا موت کے اوپر اختیار تھا. اور اس کی قبر خالی ہے کہ وہ موت کے اوپر غالب آیا ہے. اور کیا ہے باتیں جو خدا آپ کو اس کو خدا بناتی ہیں؟ صرف یہی 2 باتیں کہ وہ گناہ معاف کر سکتا ہے, اس کا قدرت کائنات کے اوپر اختیار ہے, اور گناہ معاف کر سکتا ہے, بس. He was the man of authority. وہ مرد اختیار تھا, اس کے پاس اختیار تھا. اس نے کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. جی آنٹی جی, ذہن میں نکل گیا, کوئی بات نہیں, یاد کر لیں, اٹس اوکے, ڈزنٹ میٹر. ہاں جی, یاد رکھیں خدا کلام مقدس میں بیان کرتا ہے کہ اس لیے وہ عجیب و مشیر ہے کیونکہ وہ ایک ہی وقت میں خدا بھی ہے اور انسان بھی ہے. اور دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جس نے ایٹ اے ٹائم خدا اور انسان ہونے کا دعویٰ کیا ہو. بہت سارے لوگ ہیں اس دنیا میں جو آئے اور جنہوں نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا, لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں انسان بھی ہوں. انہوں نے صرف یہی کہا کہ میں ہی خدا ہوں, میں ہی خدا ہوں. لیکن خداوند یسوع مسیح نے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو آدم کا بیٹا کہہ کر, اپنے ابن آدم کہہ کر اس نے اپنے آپ کو زیادہ کہلوانا پسند کیا بنسبت اس کے کہ وہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہے. خداوند یسوع مسیح نے اپنے لیے خدا کا بیٹا کا جو ٹائٹل ہے وہ کم, بلکہ ابن آدم کا جو ٹائٹل ہے وہ زیادہ استعمال کیا ہے اپنے لیے, کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ آئی ایم آلریڈی اے گاڈ, آئی ایم اے گاڈ. تو میں نہیں چاہتا کہ مجھے لوگ خدا کے طور پر جانے, بلکہ وہ چاہتا تھا کہ لوگ اس کو ایک انسان کے طور پر جانے کہ خدا انسان کے روپ میں آیا ہے. اور اب یہ خدا جو انسان بنا ہے وہ ایک انسان کے احساسات کو, اس کے جذبات کو, اس کے فیلنگ, اس کے ایموشن کو, اس کے درد کو اور اس کے کرب کو سمجھ سکتا ہے, تاکہ وہ یہ کہہ سکے کہ آئی کین انڈرسٹینڈ یور سچویشن,
I can understand your feelings. I can understand कि what you are going through. लेकिन अगर वो हमारे साथ रिलेट नहीं कर पाता तो फिर वो तो खुदा होता और हम इंसान, फिर हमारा और उसका आपस में क्या मिलाप है? कोई मिलाप नहीं। तो इसलिए मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो अजीब मुशीर खुदाए कादिर है। इसलिए वो उसका नाम अजीब है क्योंकि एट अ टाइम ही इज गॉड एंड परफेक्ट मैन एज वेल। और पिछले साल मैंने कलाम मुकद्दस में से ये शेयर किया था आपके साथ कि डिड मैरी गिव बर्थ टू गॉड? क्या मरियम ने खुदा को जन्म दिया था? तो दूसरा उसका जो तीसरा जो इसका नाम इस हवाले में बयान किया गया है वो है कि उसका नाम खुदाए कादिर होगा। खुदाए कादिर का मतलब है अलमाइटी गॉड। अलमाइटी गॉड समझते हैं क्या है होता है? हाँ जी, सब तरह की कुव्वत, ऑल पावरफुल, ठीक है, अलमाइटी गॉड। तो क्या ख्याल है आपका, क्या हम यीशु मसीह को कह सकते हैं कि ही इज अलमाइटी गॉड? कहां पे, कैसे, कुल क्या किया उसने? मेरे कुल इख्तियार उसने कहा मेरे पास है। हाँ जी, पहली बात कि उसने कहा कि ऑल अथॉरिटी ऑफ हेवन एंड अर्थ हैज बीन गिवन अनटू मी। उसने ये नहीं कहा कि मुझे दी जाएगी या मिलेगी, नहीं, उसने कहा कि ऑलरेडी मेरे पास है, आसमान और जमीन का कुल अख्तियार मुझे दिया गया है। और वो सेम अथॉरिटी जो है खुदा ने मुझे और आपको दी है। और कौन सी बात है जो उसे खुदाए कादिर बनाती है, अलमाइटी गॉड बनाती है? पहली बात कि आसमान और जमीन का कुल अख्तियार उसके पास है, और गुनाह माफ करने का अधिकार है, गुनाह माफ करने का अख्तियार है, और जिंदगी देने का अख्तियार है, और शिफा देने का अख्तियार है उसके पास, और गुनाहों का माफ करने का। और आगे बढ़े थोड़ा तो आगे मौजूदात का, और आगे बढ़े थोड़ा सा खुदावंद की जिंदगी में, और ज्यादा आगे बढ़े। किस चीज के इंतजार में हैं आप? निजात तो मिल चुकी है आपको, अभी किस चीज के इंतजार में है आपको, जो चीज अभी आपको नहीं मिली है? ग्लोरीफाइड बॉडी, ग्लोरीफाइड बॉडी। आप जिसके इंतजार में वो खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद है। दुनिया के जितने भी माबूद, दुनिया के जितने भी नबी, जितने भी खुदा जिन्होंने खुदा होने का दावा किया, किसी ने नहीं कहा कि मैं फिर दोबारा इस दुनिया में आऊंगा। ये इख्तियार और ये दावा सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह ने किया है। इसलिए हम कहते हैं कि ही इज अलमाइटी गॉड, क्योंकि उसने कहा कि मैं जाता हूं और फिर आऊंगा, जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, ताकि फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूं। आकर वो हमें अपने साथ लेकर जाएगा। ये नहीं कि कहेगा कि चलो ठीक है मैं वहां रहता हूं और तुम मेरे पीछे आ जाना। दुनिया के खुदा ये कहते हैं कि मैं जा रहा हूं और तुम मेरे पीछे आ जाना, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह इसलिए दुनिया के तमाम दूसरे लड़कों से जो पैदा हुए मुख्तलिफ है, क्योंकि उसने कहा कि मैं जाता हूं और फिर आकर खुद तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। दुनिया का कोई ऐसा माबूद नहीं जिसने यह दावा किया हो या जिसने यह दावा करने का इरादा जाहिर किया हो। यह सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि मैं जाता हूं और फिर आकर तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। इसलिए यह अजीब मुशीर खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा है। इसलिए यह लड़का जो है वो दुनिया के दूसरे लड़कों से मुख्तलिफ है। इसलिए यह लड़का हमारे लिए तवल्लद हुआ है, जिसकी हमें पैरवी करने की जरूरत है, जिसके पीछे हमें चलने की जरूरत है, जिसको अपना मालिक और अपना मुनज्जी कबूल करने की जरूरत है। मेरे अजीजों, अगर यह लड़का दूसरे दुनिया के पैदा होने वाले लड़कों से मुख्तलिफ नहीं है तो फिर यह हमारा निजात दहिंदा भी नहीं है, फिर यह हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता। जैसे बहुत से नबी आए, बहुत से देवियां और देवता आए, उन्होंने डेटी का खुदा होने का दावा किया और वो मर गए और फना हो गए, खत्म हो गए। तो यह भी एक महबूद आया, उसने दावे किए और मर गया और खत्म, कहानी खत्म। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है मेरे अजीज, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। अभी उसका आधा काम मुकम्मल हुआ है और आधा काम अभी उसने करना है, अभी उसने आना है और आकर मुझे और आपको उसने अपने साथ लेकर जाना है। और यही वो हमारी सबसे बड़ी उम्मीद है जिसमें हम जिंदगी बसर कर रहे हैं। इस उम्मीद के बगैर हमारा मसीही ईमान जो है वो अधूरा है। कैन यू से आमीन? हम इस माबूद के इंतजार में है जो तवल्लद हुआ है, जो बोर्न हुआ है, जो पैदा हुआ है। तो आज मेरे अजीजों, सोचने का जो अमल है वो ये है कि क्या ये शख्स मेरी जिंदगी में भी पैदा हुआ है?
यह सिर्फ दुनिया में ही पैदा हो गया। दुनिया में पैदा हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे अजीजों। बहुत सारे बच्चे हैं आज भी जो बगैर शादी के पैदा होते हैं, लेकिन ये जो है ये दूसरों से मुख्तलिफ है, इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। और फिर चौथा नाम जो उसका है लिखा हुआ वो अब्दियत का बाप होगा। अब्दियत का बाप, अब्दियत कहते हैं इंतहा का पैदा करने वाला। ही इज द बिगनिंग एंड एंड। उसका नाम अल्फा और ओमेगा है, बिगनिंग एंड एंड है। सिर्फ यही नहीं कि शुरू में और आखिर में बस वो है और बाकी सारा खाली है, बाकी कोई और दूसरे खुदा हैं। नो, ही इज इन द मिडल एंड ही इज इन द बिगनिंग एंड इन द एंड एज वेल। वो शुरू में भी है, मिडल में भी है और आखिर में भी है। इसलिए उसका नाम जो है वो अब्दियत का बाप रखा गया है। और यस्सु जो है वो अब्दी जिंदगी का बानी है। वो अजली और एवरलास्टिंग जिंदगी जो है वो हमें देने के काबिल है, एंड ही इज द फाउंडर ऑफ दैट एवरलास्टिंग लाइफ। और वो लाइफ, एवरलास्टिंग लाइफ जो है, अब्दी जिंदगी जो है, वो यस्सु मसीह ने अपने खून के वसीले से तैयार की है, खून के वसीले से। और जब तक उसका खून हमारी रगों में नहीं दौड़ता, उस वक्त तक हम इस अब्दी जिंदगी के हकदार नहीं बनते। और अब हर वो शख्स जो अब्दी जिंदगी को हासिल करना चाहता है, जरूर है कि वो अपने गुनाहों का इकरार करे, अपने गुनाहों से माफी मांगे, उनको तर्क करे और यीशु मसीह को अपने आका, अपने मालिक और अपने मुनज्जी के तौर पर कबूल करे और फिर उसके कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करे, तो वो हमेशा की जिंदगी का वारिस होगा। ये नहीं कि बस तौबा कर ली है, गुनाहों से इकरार कर लिया, माफी मांग ली है, तो बस अब हमारा काम खत्म हो गया। नो, हमें इस काम को जो शुरू किया है उसको पाया तकमील तक भी पहुंचाना है। और फिर पांचवा नाम जो इस हवाले में उसको दिया गया है वो है कि उसका नाम सलामती का शहजादा होगा। सलामती कहते हैं अमन को, शांति को, प्यार मोहब्बत को, सुलह सलामती को। मगर अफसोस कि आज ये अमन, ये शांति, ये प्यार, ये मोहब्बत, ये सुलह और सलामती जो है वो हमें जिंदगियों में से खत्म होती हुई नजर आ रही है। और इस हकीकी सलामती के लिए जरूरी है कि हम इस अमन के शहजादे को अपनी जिंदगियों में, अपने खानदानों में, अपने घरों में दावत दे, ताकि आए और वो हकीकी खुशी, शादमानी, प्यार, मोहब्बत, सुलह, सलामती और अमन को कायम कर सके। क्योंकि उसके अलावा कोई और दूसरा शख्स नहीं जो प्यार, मोहब्बत, सुलह, सलामती और अमन को कायम कर सके। सिर्फ यीशु ही सलामती ला सकता है। यशायाह 2 बाब और उसकी 2 से 4 आयत को जरूर पढ़कर देखें, क्योंकि अगर हम अपने अंदर सलामती के शहजादे का सा मिजाज अपने अंदर नहीं रखेंगे तो हम कभी भी सलामती को पैदा नहीं कर पाएंगे। अगर उसका सा किरदार हमारी जिंदगी में होगा तो हमारी जिंदगियों में सलामती नहीं होगी। और फिर यीशु जो है वो मोहब्बत का हुक्मरान है। ही इज अ रूलर ऑफ लव, और वो हमारी मोहब्बतों, हमारी जानों का प्यारा है, जो कि गजल गजलात की किताब में लिखा है, ही इज लवर ऑफ माई सोल, ही इज द लवर ऑफ माई सोल। और आप इसको इज़ाया चैप्टर 40 और वर्स 11 में भी पढ़कर देख सकते हैं कि वो जो है वो ऐसा हुक्मरान है जो मुल्कों पर हुकूमत नहीं करना चाहता, बल्कि वो दिलों पर हुकूमत करना चाहता है। इज ही अ किंग ऑफ योर हार्ट और इज ही अ लवर ऑफ योर सोल? अगर है तो फिर मेरे अजीजों, आप खुदावंद के मुकद्दस लोग हैं और खुदावंद आपके दिल और रूह, बदन और जान के ऊपर हुकूमत करता है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर याद रखें हम उस अब्दी जिंदगी से और उस अब्दी सलामती से महरूम हैं। और फिर आखिरी बात जो है वो लिखा है कि सल्तनत उसके कंधे पर होगी। किसी को मालूम है कि किस किस्म की सल्तनत की बात यहां पर की जा रही है? छठी बात जो है कि सल्तनत उसके कंधे पर होगी। सल्तनत ये जो जैसे प्रिंस विलियम है, चार्ल्स का जो बेटा है, वो है कंधे के ऊपर सल्तनत। जी क्या है सल्तनत? इसका कभी आखिर नहीं है। ओके, वो तो आखिर तो नहीं होगा, लेकिन वो शुरू करेगा तो आखिर होएगा ना। अगर शुरू ही नहीं किया तो कैसे होगा आखिर? कंधे से क्या मुराद है आपको? सल्तनत उसके कंधे पर होगी। कंधे से क्या मुराद होता है? मतलब वही चलाएगा ना सर। वही चलाएगा। तो क्या, किस तरह चलाएगा?
ही विल बी, वो जिम्मेदार है। कलाम कसरत सल्तनत उसके कंधे पर होगी, यानी जिम्मेदारी उसके शोल्डर्स के ऊपर है, उसके कंधों के ऊपर है कि कैसे उसने बनी नौ इंसान को गुनाह की कैद से रिहाई देनी है, कैसे उसने उनको छुड़ाना है, कैसे उन्हें उनका बाप के साथ मिलाप करवाना है, और कैसे वो सब कुछ जो इब्लीस ने उन इंसानों से चोरी कर लिया है उसने कैसे उसको रिस्टोर करना है। ये सारी की सारी जिम्मेदारी इस लड़के के ऊपर है जो अजीब मुशीर खुदाए कादिर अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा है, और जो तवल्लद हुआ है, जो पैदा हुआ है हमारे लिए, दूसरों के लिए नहीं, हर शख्स के लिए इंडिविजुअली वो पैदा हुआ है। और खुदा चाहता है कि वो इस जिम्मेदारी को अच्छे तरीके से निभाए, और इसके निभाने का सबूत हमारे पास यह है कि उसने हमारे दुखों को, तकलीफों को, बीमारियों को, मुश्किलात को, मसाइल को और परेशानियों को हमसे दूर किया है। उसने हमारी जिंदगियों को बदला है, हमारे दिलों को बदला है, हमारे किरदार को बदला है, हमारे चाल चलन को बदला है, हमारे उठने बैठने को बदला है, और हमारी जिंदगियों में जो तब्दीली है वो उसकी जिम्मेदारी का एक एहसास है। वो बादशाही करने और हुकूमत करने के लिए आ रहा है, बल्कि आ चुका है, और वो हमारे दिलों पर, हमारे खानदानों पर, हमारे शहरों पर और हमारे मुल्कों पर हुकूमत करना चाहता है। और आशा के साथ, लोहे के आशा के साथ नहीं, बल्कि प्यार और मोहब्बत के साथ वो हमारे दिलों पर हुक्मरानी करना चाहता है। और इसकी उसने जिम्मेदारी ली है ताकि वो हमें इब्लीस के सारे चुंगल से बचाएगा, इब्लीस के सारे हमलों से बचाएगा, और हमें महफूज और सलामत खुदा बाप के तख्त के सामने पेश करेगा। तो मेरे अज़ीज़ों, इसलिए ये लड़का जो है वो दुनिया के आम लड़कों से मुख्तलिफ है। इसलिए हमें इस लड़के की पैरवी करने की जरूरत है, इसके पीछे चलने की जरूरत है, और इसको अपने आका, अपने मालिक और अपने मुनज्जी के तौर पर कबूल करने की जरूरत है। खुदावंद इस कलाम के वसीले से हम सबको बरकत दे। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें कि खुदा हमें उस औरत की तरह ना बनाए जिसके शुरू में मैंने कहा कि जिसने दरख्वास्त की खुदा से, तू मेरी मदद कर। जब खुदा ने मदद की तो जो सोर्स ऑफ हेल्प है उसको ही उसने डिनाई कर दिया। तो मेरे अज़ीज़ों, आइए आज उस सोर्स ऑफ हेल्प को जो खुदावंद यीशु मसीह है, जिसके वसीले से हमारा बाप के साथ मिलाप हुआ है, जिसके जरिए से हम खुदा के बेटे और बेटियां बने हैं, जिसके वसीले से हम खुदा की मुकद्दस कौम बने हैं, जिसके वसीले से हम शाही कायनों का फिरका बने हैं, जिसके वसीले से हम बेधड़क जब चाहे जिस वक्त चाहे हम खुदा बाप के तख्त के सामने हाजिर होकर उसको अपने दिल की कैफियत बयान कर सकते हैं। आइए आज उस शख्स की खातिर अपने आप को उसके ताबे कर दें और उसे कहें कि खुदावंद, मैं तुझे अपनी जिंदगी का मालिक और मुनज्जी बनाता हूं और अपनी जिंदगी तेरे हाथों में सौंपता हूं, और मेरी जिंदगी की डगर तू अपने हाथों में ले। मैं पीछे हटता हूं और तू आ गया, और जैसे तू मेरी जिंदगी को चलाना चाहता है तू चला, ताकि उससे तेरे ही नाम को इज्जत और जलाल मिले। आइए हम सब अपने सर को झुकाएं और दुआ करें। हालेलुया। खुदावंद कायनात के बादशाह, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं कि तू बोलने वाला खुदा है और सुनने वाले लोगों की तलाश में है। तेरी शुक्रगुजारी करता हूं बाप कि तूने मुझे अपने कलाम में से दिया और मैंने तेरे कलाम को दयानदारी और वफादारी के साथ तेरे लोगों तक पहुंचा दिया। अब मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तू इस पाक कलाम के वसीले से हमारी जिंदगियों को बदल, हमारे जहनों को बदल, हमारे ख्यालात को बदल, हमारी सोचों को बदले बाप, ताकि खुदावंद खुदा ये क्रिसमस गुजरे हुए तमाम क्रिसमस की तरह बगैर असर किए हमारी जिंदगियों में गुजर ना जाए, बल्कि ये क्रिसमस आने वाले क्रिसमस जो गुजरे हुए क्रिसमस हैं उनसे मुख्तलिफ हो, ताकि खुदावंद हमारी जिंदगियों में बरकत आए, बढ़ोतरी आए, तरक्की आए, खुशहाली आए, और खुदावंद उससे तेरे ही नाम को इज्जत और जलाल मिले। यीशु मसीह नासरी के नाम में ये दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन।